Dear students, a very pleasant good morning to you. We wishes a good health and well-being of you all in this odd time. Just like our time is pandemic COVID-19. In these critical situations, we all the family of St. Jude's are consistently ready to hold your hands. We are using a unique educational system, online system, and complete to do development of our lovely students. So my dear students, please cooperate us in this educational system. Today, we will talk about what questions can come in tomorrow test. The most important thing is that what you taught, what you learned in chapter number system, and what I taught you in this chapter. We will talk in this video part by part. First of all, questions on the basis of definition. First, in test, the question can come that define rational number, define irrational number. And you all know what is a rational number, what is irrational number, what is a real number. In initial time, first of all, we classify the numbers as natural number, whole numbers, integers, rational number, irrational number, after that real number, or what is the difference between fraction and rational number. Rational number and fraction both can be written in the form of p by q, where p is numerator and q is denominator. Q not equal to 0, it means in fraction or rational, denominator cannot be 0. In fraction, nature of p and q, it means the nature of numerator and denominator are whole numbers. But in rational number, nature of p and q are integers. For the definition of rational number, you can write that it can be written in the form of p by q, q not equal to 0. P and q are integers and p and q are co-primes. That's all. Here, for definition. Difference, if you are asked difference between fraction and rational number,
you can distinguish that main difference between fraction and rational number is that in fraction p and q are whole numbers, but in rational numbers p and q are integers. That's बस इतना ही आपको लिखना है. Next topic that can come in your test: inserting rational numbers between given any two rational numbers. You are given any two rational numbers, just like 2 and 3, and you can be asked that write the three rational number between 2 and 3. कहने का मतलब है, it means you are given two rational number 2 and 3, 2 और 3 आपको two rational number दिया हुआ, और between 2 and 3 you have to find three rational number. आपको three rational number find करना है 2 और 3 के बीच में. इसके भी क्लास में जो है आपको कई ढंग से on the basis of decimal, on the basis of मीन, अरिथमेटिक मीन, इट मीन्स दोनों को सम कर दीजिए, बाय 2 कर दीजिए, इसके बीच का आ जाएगा. जस्ट लाइक यदि 2 and 3 दिया हुआ है, 2 and 3, यदि 2 and 3 दिया हुआ है आपको, इफ 2 and 3, 2 and 3, अब इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना. सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताए थे, यदि 2 and 3 के बीच में डिसिमल के आधार पे उसको लिख सकते हैं 2.0 and 3.0. अब 2.0 3.0 के बीच में यानी थ्री रेशनल नंबर 2.1 2.2 2.3. ओके, इस सबसे इजी मेथड डिसिमल एक्सपेंशन के आधार पर. और इन 8 क्लास, इन प्रीवियस 8 क्लास में आपने 8 क्लास में 2 and 3 के बीच में तो 2 + 3 को ऐड करके और हाफ एक मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं बीच का नंबर, यू गेट 5/2. अब 2 और 3 के बीच में आपने 5/2 को गेट किया. अब 2 and 5 2 and 5/2 के बीच में एक अदर नंबर को गेट करना है. फिर अगेन आप 2 + 5/2, अब हाफ 2 + 5/2 इसका कर लेना. 2 × 4 + 5 9/2, इट मीन्स ये हाफ इंटू 9/2, यू गेट 9/4. 2 और 5, 2 and 5/2 के बीच में 9/4 गेट किए. फिर इसी ढंग से 5/2 + 3 के बीच में एक नंबर को फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपको हाफ 5/2 + 3, और इसे 3 × 2 = 6 5 11/, ये आप पाइएगा हाफ इंटू 11/2, और इसके बीच में आप जो है 11/4 को फाइंड कर सकते हैं. इस ढंग से आप 3 रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ये हमने बताया. और सबसे लास्ट मेथड आप लोगों को बताया कि इसमें जो है आपको पहले डिफरेंस दोनों नंबर के बीच में, यदि 2 and यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 है, कितने नंबर फाइंड करना है, उसको n लेते थे, n = 3 नंबर फाइंड करना. अब हम लोग जो है एक d का वैल्यू फाइंड करते थे, जिसमें ग्रेटर देन b - a बाय n + 1 के फॉर्म में लेते थे. Here b = 3, ये b = 3 and a = 2. इस ढंग से आप b - 3 - 2 बाय
n+2 मतलब 3 नंबर को फाइंड करना, तो 3 + 1 है इक्वल टू 1/4। डी के फाइंड करने के बाद अब स्मॉलेस्ट जो है इसमें नंबर 2 है, तो फर्स्ट नंबर 2 + 1/4 फाइंड कीजिएगा। 4 2 या 8 और 9/4 आप गेट कीजिएगा। फिर 9/4 में फिर 1/4 को आप ऐड कीजिए। 9/4 + 1/4 इक्वल टू 10/4। 10/4 के रूप में आपको 5/2 आ जाता है। 5/2 इक्वल टू 5/2। फिर 10/4 में आप नेक्स्ट जो है 10/4 10/4 को आप फाइंड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब 10/4 इस 10/4 में प्लस 1/4 को ऐड करेंगे, तो ये 11/4 आ जाएगा। और इस ढंग से आप 9/4 5/2 एंड 11/4 3 नंबर को आपने फाइंड कर लिया। इस ढंग से आप कोई भी जो 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा उसके बीच में जितना आपको नंबर फाइंड करने के लिए कहा सकता है बीच में रेशनल नंबर को, n इक्वल टू उस नंबर को वैल्यू इनपुट करने के बाद निकाल सकते हैं आसानी से। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के रूप में आपको सबसे पहले अगर रेशनल नंबर, इफ रेशनल नंबर इज गिवन dy/q के फॉर्म में दिया हुआ रहे, जस्ट लाइक 2/3 या 4/3 9/7, तो इसमें आप कैटेगरी में बांट लेंगे कि इसमें से कौन प्रॉपर और कौन इम्प्रॉपर के फॉर्म में है। कहने का मतलब है प्रॉपर, जैसे ये आपको डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉलर है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसका आप रेंज पता कर लेते हैं। प्रॉपर का जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर जो है आपको 0 और 1 के बीच में, यह जो 0 और 1 के बीच में लोकेशन इसका पता चल जाता है। तब 2/3 के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं और ये आपको यहाँ पर 0 और 1 हो गए। इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। अब ये 1/3 2/3 3/3 1 ये हो गया। 2/3 तो 2/3 पर एक पॉइंट को डॉट कर देते हैं और ये 2/3 आपको हो गया। इस ढंग से प्रॉपर इम्प्रॉपर। अगर ये 4/3 के रूप में आपको जस्ट लाइक यदि 4/3 आता है, या आपको इम्प्रॉपर के रूप में ले लेते हैं 10/3। 10/3 है तो 10/3 का क्या होगा 3 and 1/3, इट मीन्स 10/3 बिटवीन 3 and 4, ये 3 से ग्रेटर देन है, 3 1/3 बट लेस देन 4। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद आपको लोकेशन पता चल जाता है। इट मीन्स 3 and 1/3 between 3 and 4. Now you can draw a straight line. You write mark 3, you mark 4, and between space between 3 and 4 divided into 3 parts, 1 2 3. अब here 3, ये 1/3 हो गया, 3 and 1/3, ये नेक्स्ट 3 2/3, तो 3 1/3 यहाँ पॉइंट यूनिट कर देंगे 3 and 1/3। इस ढंग से प्रॉपर इम्प्रॉपर के फॉर्म में लिखा। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो सकता है आपको? मिस्टेक के लिए आपको सबसे बड़ा बात यह है यदि निगेटिव फॉर्म में रहता है, जस्ट लाइक यदि आपको जो है ये -10/3, सपोज दैट -10/3, तो -10/3 तो ये आपको आता है -3 and 1/3। यह इसका लोकेशन क्या होगा? ये लोकेशन होगा आपको, ये देखिए -3 ग्रेटर देन -3 and 1/3 ग्रेटर देन 4 -4।
अब ये -3 -4 के बीच में है, लेकिन आप देखते हैं कि ये निगेटिव जो होते हैं ओरिजिन 0 से आपको लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले -4 लिखेंगे, तब -3 लिखेंगे। थोड़ा सा इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। -4 ये मूव करता है -3 to -4, तो -4 और -3 के बीच को आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। अब यहाँ से इसमें काउंट भी लेफ्ट टू राइट, आप यहाँ पर आप जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। -3 -3 के बाद -3 and 1/3, उसके बाद -3 and 2/3, उसके बाद 4। तो -3 1/3 ये पॉइंट डोनेट कर दिया, आपको हो गया ये -3 and 1/3। नाउ इन दिस वे you can represent a rational number in the form of p/q on the number line। ओके, तो इस ढंग से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आगे नेक्स्ट आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो क्लास में कई बार आप लोगों को रिपीट किया है, यदि इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट अंडर के फॉर्म में रहता है, जस्ट लाइक रूट अंडर, आपको जो है 9.4 ये आपको जो है 9.4 आपको दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्केल फैक्टर सबसे पहले ले लेना है। स्केल फैक्टर के रूप में आप ले सकते हैं स्केल फैक्टर लिख देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में स्केल फैक्टर निश्चित लेंगे यूनिट के फॉर्म में। यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 9.4 यूनिट मीन्स 9.4 सेंटीमीटर। 9.4 सेंटीमीटर। अब जो नाउ यू कैन ड्रॉ और 9.4 यूनिट के लिए, 9.4 यूनिट के लाइन को ड्रॉ करने के लिए बाय स्केल फैक्टर हेल्पिंग आप जो है 9.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 9.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है 9.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ए बी के रूप में ले लेते हैं। मतलब इट मीन्स ये चीज़ 9.4 यूनिट का आपने जो है ये 2 पॉइंट इसको डिनोट कर देते हैं। उसके बाद 1 यूनिट को जो है फिर प्रोड्यूस करते हैं सी तक प्रोड्यूस कर लेते हैं AC। इसके बाद जो है AC के बाद इसको भी थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस ढंग से आपको जो है C पॉइंट, B पॉइंट, A पॉइंट, 3 पॉइंट। अब AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं, इससे AC का मिड पॉइंट आपको फाइंड हो जाता है। इसका नाम आप O रख देते हैं, O रख दीजिए, ये हो गया। अब OA इक्वल टू OC का रेडियस से OA इक्वल टू OC इस रेडियस के आप एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तक जो A और C दोनों पॉइंट को टच करेगा। AC के ड्रॉ करने के बाद ये AC पर जो है AC डायमीटर के सर्कल सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट B पर एक 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हैं विथ हेल्पिंग ऑफ सेट स्क्वायर और कंपास। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किए। अब यह जो है सेमी सर्कल को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया उसका पॉइंट देते हैं D। नाउ यू हैव BD इक्वल टू आ गया, BD इक्वल टू आपको आएगा रूट अंडर 9.4, ये BD। अब BD के लिए B पॉइंट पर हम 0 दे देते हैं और ये BD लेंथ को, जो ये BD इक्वल टू लेंथ है, सपोज दैट BD लेंथ जो है ये आपको यहाँ से यहाँ तक BD लेंथ है। अब इसी लेंथ को इस पर ड्रॉ करेंगे, यह डॉट डॉट करते हुए आपको BD लेंथ यहाँ इतना आ गया, ये यहाँ तक आ गया BD लेंथ आया, सपोज दैट यहाँ तक आया ये BD। यहाँ पर D1 डैश लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे D डैश और ये BD1 आपको लिख देंगे रूट अंडर 9.4। हाँ, अब ये रिप्रेजेंट लाइन नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट हो गया। हेयर BD इक्वल टू BD डैश इक्वल टू ये लेंथ
रूट अंडर 9.4 और फॉर रूट अंडर 9.4 ए पॉइंट डी ऑन रियल नंबर लाइन, और दोनों तरफ एरो का मार्का लगा दीजिए बढ़ा के इंक्रीज करके। ये आपके लिए हो गया एक कंप्लीट, आपको हो गया रियल नंबर लाइन जहाँ पर बी 0 है रूट अंडर 9.4। ओके, नाउ इट इज क्लियर। और इसी में माइनस रूट अंडर अगर 9.4 रहेगा, ठीक इसी लेंथ का यहाँ पर इस लाइन पर इस तरफ ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको, अगर ये पॉइंट मिलता है सी तक का, हाँ आपको यहाँ से इस तरफ बी से, तो इधर हो जाएगा इस पॉइंट के लिए अगर ई नाम देते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस रूट अंडर 9.4। इस ढंग से आप रूट अंडर एक्स या रूट अंडर एन के फॉर्म वाले इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आप जो है कैसे, तब आता है शॉर्ट्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अंतर्गत आपको रेशनलाइज करने के लिए या आपको शॉर्ट्स का जो होता है उस पर ऑपरेशन, सम ऑफ शॉर्ट्स, डिफरेंस ऑफ शॉर्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट्स कैसे करेंगे, ये किया जाता है। रेशनलाइज के लिए सबसे फर्स्ट थिंग, रेशनलाइज के लिए वह किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में आपको है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो किस फॉर्म में है। तो देखिए, कहने का मतलब है यदि जो है रेशनलाइज के लिए ये आपको, यदि आपको फर्स्ट, यदि नंबर जो दिया हुआ है 1/√a के फॉर्म में दिया हुआ है तो ऊपर नीचे आप √a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशनलाइज हो गया। ऊपर √a हो जाएगा, नीचे √a हो जाएगा। इट मीन्स 1/√2 दिया हुआ है, ऊपर नीचे √2 से आपने मल्टीप्लाई किया, √2 के मल्टीप्लाई करने के बाद आपको न्यूमरेटर की जगह पर √2 और डिनोमिनेटर की जगह पर 2, और ये आपको ये रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया। इसी ढंग से अगर अदर फॉर्म आता है 1/√a प्लस b, यहाँ से कंजुगेट शुरू हो जाता है। यदि a डिनोमिनेटर में a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, √a माइनस बी बाय √a माइनस बी, और इस ढंग से आप न्यूमरेटर के जगह पर √a माइनस बी को फाइंड करते हैं और यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में √a² माइनस b², और यू गेट √a माइनस बी बाय a माइनस b²। इस ढंग से आप जो है रेशनलाइज करेंगे। होप दैट you all students will a best score in your test। सभी आप लोग जो है, हाँ, स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग योर टेस्ट you must watch this video to get best score in math test। After watching this video, hope that all the students will get the best marks। ओके, सभी स्टूडेंट्स वीडियो आप टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को सावधानीपूर्वक वॉच करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, नाउ थैंक्स। आशा करते हैं, होप दैट दिस वीडियो आल्सो हेल्प यू इन टू गेट ए बेस्ट स्कोर in test। Thanks।